there. Try to relate some news articles. Like last year, there was lots of news related to floods were there in the regions of Himachal, Punjab, and it caused a great economic disruption, right? It could be that, or any of the news you could build up due to the past records, also any of the movie which was built up on it. So all these things you're free to discuss on it. The best of the quality of content will win. See, you are rated on number of perspectives. First is your quality of content. Second is your participation. Third is your choice of words. Fourth is your narratory skills, fluency. You can go for any language. It can us English. Most welcome in that case too, right? Your introduction should be very much impactful and same as your conclusion one. Clear out, guys, on what you're going to be, you can say, the checklist on which you are going to be checked. हेलो Clear? Yeah, Tara? मैम मैम मेरा माइक थोड़ा ऑफ था उस टाइम पे आपने बोला था तो आवाज नहीं। Okay, it was just I'm discussing it out as on what perspectives you are being rated in an interview, right? On being, you can say you're marked in an interview. Your fluency, right? Your content participation. What is your quality of content? It does not matter how many times you participate. More matter is like in the last GDs in the IOCL, many of the students who participated only once, but the content had the best of the jargons, the best of the quality, the technical that stuff was there, everything was there. They selected that individual. An entire team was, you can say, out of that, right? So it depends on your participation, number of times, the quality of content you give, the fluency you maintain, the confidence you carry, narratory skills, that is the number of times you pause, you bluff, everything is being counted, right? So not only one participation level is being judged. Try to have some innovative content. I'm repeating it out. Don't give very poor quality contents. And last, I give you a hack. Go for जब भी आपको कंटेंट लिखने को बोला जाए ना 3 मिनट्स है साइड पे ना एक लाइन बना लिया करो पेपर के लिखा करो यूथ चिल्ड्रन ओल्ड एज गवर्नमेंट मॉरल सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक ये सारे हेडर्स मैं आपको एक बार क्लास में एक नरेट करूंगी ये सारे साइड पे नोट करने हैं और देखा करो उससे रिलेटेड इकोनॉमी से रिलेटेड अच्छा इंडियन इकोनॉमी पे अगर इम्पैक्ट पड़ रहा है तो गवर्नमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो आ जाएगा पॉइंट यूथ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है अच्छा क्या पता जॉब्स पे नहीं जॉब्स पे तो पड़ता नहीं है मतलब ऐसे आपको क्रॉस और टिक करना होता है इससे आपके पॉइंट्स जल्दी बन जाते हैं व्हेन यू ब्रेनस्टॉर्म योर कंटेंट राइट मॉरल प्रिंसिपल्स पे सोशल प्रिंसिपल्स पे पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स पे इकोनॉमिक आ जाता है दिस इज गवर्नमेंट स्कीम्स यूथ स्कीम्स चिल्ड्रन स्कीम्स वुमेन पे इस सारे में आपको कुछ 15 टॉप पॉइंटर्स है वो नोट कर लेना मेरे साथ नेक्स्ट टाइम जब भी आप इंटरेक्ट करोगे ट्राई टू नोट इट डाउन ठीक है Clear with all these things? 3 minutes timer starts now. At 1:39, we are going to start, guys. Anyone who has never given the introduction? यस मैम। Yes, ma'am. Who has not given? Kuldeep? Yes, ma'am. Kuldeep, go for the introduction today. Anyone who has never given the conclusion? Conclusion, Yes. anyone? Yes, ma'am. Okay, Hemraj for conclusion. Okay? Okay, ma'am. Kuldeep and Hemraj, whenever you introduce or conclude, you get extra points if you do it in a better way. But that doesn't mean you have to reduce your participation in between. That is only going to give you booster pointers, but not extra, or you can say going to cover up your participation in between. So balance it out also. Okay? Okay, ma'am. Okay. Good. Okay, all the best. Write it down. Okay, friends. Good afternoon. My name is Kuldeep Kumar Verma. I'm glad to start the today. I am glad to start the discussion. Today, the topic is given to us for discussion. That is the impact of Indian economy due to sudden change climate. In my opinion, this is very interesting topic. क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं कि हम क्लाइमेट की वजह से हमारे इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा उससे पहले हमें ये जानना चाहिए कि करंट टाइम में हमारी इकोनॉमी किस रेंज में है तो अभी करंट टाइम में हम $7.35 ट्रिलियन के साथ वर्ल्ड में फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी पर स्टैंड कर रहे हैं ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि हम 2030 तक थर्ड इकोनॉमी लार्जेस्ट वर्ल्ड में थर्ड रैंक पे पहुंच जाएंगे
पर ये मेरी नज़र में ये कांस्टेंट नहीं रह सकता, क्योंकि इकोनॉमी में अप्स डाउन्स आते रहते हैं कभी क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो जैसे अभी करंट टाइम में हम बात करें, तो जैसे बिहार की बात करें, तो वहाँ पे फ्लड की वजह से कई सारे पुल डिस्ट्रॉयड हो गए, गिर गए। तो इसमें क्या है कि फिर से अब गवर्नमेंट को उसके लिए एक अलग से बजट पास करना पड़ेगा, और उसके लिए फिर से पुल वगैरह ये सब बनाने पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारे इकोनॉमी पे बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। नाउ आई इनवाइट टू ऑल ऑफ फ्रेंड्स टू पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन। थैंक यू फ्रेंड्स। थैंक यू कुलदीप। मैं यहाँ Yes, कुलदीप agree with you। और मैं कुछ पॉइंट मैं ये बताना चाहूंगा कि ट्रांसपोर्टेशन की वजह से बहुत ज्यादा हमारी जो है इकोनॉमी अफेक्टेड होती है, बिकॉज ड्यू टू क्लाइमेट चेंज देयर इन सम एरिया देयर इज हैवी रेन एंड देयर इज इन सम एरिया देयर इज वेरी हैवी हीट वेव, सो ड्यू Yes. टू दैट transportation gets yes and yes the friend product cannot be transport from one place to another Also, place. yes which friend I cannot agree with boost you. the economy. इंडियन also we इकोनॉमी have the डिपेंड incident ऑल्सो of cloudburst एग्रीकल्चर in Uttarakhand. एग्रीकल्चर पे भी डिपेंड करती है इंडियन इकोनॉमी। इससे अपन जो मोस्ट ऑफ द जो गांव है विलेजेज वो एग्रीकल्चर पे बहुत डिपेंड करती है। तो कभी कभार बारिश होती है, कभी कभार नहीं होती, वो भी बहुत इम्पैक्ट होता है, उससे भी बहुत लॉस होता है इकोनॉमी का। यस यस सुनील कुमार, सडन क्लाइमेट चेंज के कारण क्रॉप वगैरह पे भी काफी इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि इससे किसानों की क्रॉप खराब हो जाती है। इसके लिए गवर्नमेंट पे एक्स्ट्रा बर्डन आता है, उनको इससे मतलब ओवरकम करने के लिए एक्स्ट्रा बजट पास करना पड़ता है। तो ये सब चीजें भी होती है, इससे भी हमारी इकोनॉमी पे एक्स्ट्रा बर्डन पड़ता है। हाँ, मैं तो Yes. जरूर and Also, we have I the want to incident of cloudburst. give some in recent year we see there is two events, La Nina and El Nino, which is frequently occur in recent year, due to which in India there is in some region there is flood, there is more heavy rains occur. I like to give one example, that is in Rajasthan. In recent year, Rajasthan, in some region of Rajasthan there is flood occur, and in some region there is very drought. So that's why farmer cannot grow their crop by in a sustained way, due to which the farming sector gets more affected, and that affect directly impact on government economy. I which agree can, with you, friend. In Bihar, I we have agree with a you. river called Your Kosi. We can take the climate change. example of that river. Like whenever there is Kosi flood, the whole economy of Bihar is disrupted Right. due to the floods. So Yes. that's so Bihar Right. has suffered a huge losses due to I that agree, flood. I agree with you, friend. रिसेंट टाइम में हमने देखी टेम्परेचर इम्प्रूव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जो क्लाइमेट चेंज इतना हो गया, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया है। फ्रेंड्स, yes, हमको आगे friends. बढ़ने से पहले इस टॉपिक पे भी डिस्कशन करना चाहिए कि जो क्लाइमेट के अंदर चेंज हो रहा है, इसके रीजन क्या है। मेरे हिसाब से सबसे yes, जो मेन Imran, रीजन है I वो agree है with you. वो है कि हमारा Global जो warming अर्थ का is- एवरेज टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है। इसके कारण मतलब जो क्लाइमेट चेंज है वो हो रहा है। बहुत Yes, ज्यादा Imran, I टेम्परेचर agree with you. का और ग्लोबल वार्मिंग जो है इसका सबसे बड़ा मेन रीजन है, ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेज, वो भी इसमें जो है इम्पैक्ट डालती हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए। ड्यू टू ओवरऑल टेम्परेचर ऑफ द अर्थ विल गो इंक्रीजेज, ड्यू टू विच हमारे जो अंटार्कटिका में जो है स्नो है सब वो ग्लेशियर Interrupting all Yes, of you, the yes. topic we have given Uh, is impact of economy due to the sudden climate change. It's not about the cause. We should only focus on the economic perspective of the climate change. Because if we know cause, then we can better discussion about how this changes is happening. क्लाइमेट चेंज हो रही है, तो क्लाइमेट चेंज की वजह से इकोनॉमी पे इम्पैक्ट हो रहा है। क्लाइमेट चेंज यस रोहित, अभी हमारे Incident क्लाइमेट है चेंज की cloudburst वजह से का। हम लोग देख रहे हैं कि हमारे देश Cloudburst में बहुत जगह कुछ पे सालों बहुत ज्यादा पहले फ्लड हो रहा है, उत्तराखंड में बहुत हुआ जगहों था। पे बहुत ज्यादा Due to सूखा पड़ that, रहा है, जिसकी वजह से tourism sector जो बहुत हमारे गांव के किसान हैं उनको एक प्रॉपर अमाउंट में फसल नहीं मिल पा रही, या कहीं पे सूखा हो रहा, तो जिसकी वजह से हमारी इंडियन टेम्परेचर गवर्नमेंट का जो है बहुत 5 किलो इफेक्ट होता है ये इसको। 5 केजी जो राशन जो पार्टिसिपेट कर रही है लगभग 70 से 80 करोड़ पब्लिक को, तो एक बहुत बड़ा अमाउंट जा रहा है हमारी इकोनॉमी का, जो कि इसको अगर क्लाइमेट या बाकी सब चीजों को सही कर लेते हैं तो ये बहुत बड़ा अमाउंट हम अपने और किसी चीज में लगा सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, बाकी बिल्कुल सब चीजों कुलदीप, पे। अगर हम बात करें हिली एरिया के कारण तो वहाँ हमारा पे जो क्लाउड ग्राउंड बर्स्ट वाटर के लेवल है काफी उसके सारे अंदर भी कमी इवेंट्स आ रही है। हुए ग्राउंड हैं, वाटर लेवल के अंदर कमी आने के जिसके कारण कारण जो कृषि tourism लायक sector भूमि है impact वो हुआ भी है। हमारी खराब हो रही है।
Yes. देखिए इमराज, मैं और एक I पॉइंट ऐड agree करना with you. चाहूंगा, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो ओशियन का लेवल है वो ऐसा फॉरकास्टिंग किया जा रहा है कि वो अप लेवल में जाएगा, ड्यू टू विच सम एरिया ऑफ द कंट्री विल सबमर्ज इनटू दैट ओशियन, ड्यू टू विच इकोनॉमी विल आल्सो गेट्स अफेक्टेड. I Yes, I also agree with highlight a Rohit. particular point due to the The sudden climate, most important due to the sector sudden which will be climate change. We can impacted see that is tourism different sector. unexpected floods and the hurricanes are keep on coming in an unexpected manner. So when this natural occurrence is going to happen, we also note that the it highly impacts the economy of that particular region where the a particular natural disaster going to happen, like the agricultural land is completely wasted off due to the flood, or so we can say hurricane. The economic activities like setting up a business, shops are being closed for that, so it heavily impacts the that particular region's economy, and also government have to allocate a high amount of resource to rescue the people from that. So in this process, the heavy part of the economy, heavy resources are being applied both in monetary terms and human level terms. Yes, I आयुष, आई agree. एग्री जितने भी हमारे अगर coastal अगर areas हमारे हैं Indian वो infrastructure केरला के अंदर, सालों के अभी बाद मैं एक समर्ज हो एग्जांपल जाएंगे. देना So चाहूँ, वहाँ केरला के अंदर बहुत ही ज्यादा हैवी बारिश, तो बहुत सारा रीजन जो है सबमर्ज हो गया था. वहाँ पे मॉनिटरिंग के लिए भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है उसको मॉनिटरिंग करने के लिए भी हेलीकॉप्टर से देख रहे थे. वहाँ पे बहुत ज्यादा फ्लड आ गया था, जिसकी वजह से जो है वहाँ की इकोनॉमी बहुत सबसे ज्यादा, हम कहें तो वहाँ की जो ये आईटी सेक्टर है वो मोस्ट अफेक्टेड हुई थी, जिसकी वजह से इकोनॉमी में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आया था. Also, we Yes, I say agree in with the you, friend. particular सबसे ज्यादा events Here, of infrastructure इकोनॉमी also जिस depend. सेक्टर का इम्पैक्ट होता है वो एग्रीकल्चरल सेक्टर है. और फिर उसके बाद Also, देखा जाए तो टूरिज्म सेक्टर हो गया. टूरिज्म सेक्टर को भी काफी ज्यादा net. इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे कि क्लाउड बस्ट इंसिडेंट्स हो गए उत्तराखंड में. Yes, yes, I तो agree with you, उससे friend. काफी ज्यादा Here, टूरिज्म इम्पैक्ट होता है. natural disaster is also which affected Indian economy. Natural disaster कभी कभार भूकंप का आना also impact डालता है मतलब Yes, Indian friends. economy यस पर. सुनील, और मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत हम जैसे देखते हैं केदारनाथ जैसे कोई जाता है, वहां पे जो है बिल्कुल हैवी जो है माउंटेन की लैंडस्लाइड पत्थर की लैंडस्लाइड लैंडस्लाइड्स की वजह से वहां पे जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो इम्पैक्ट है होता है. लोगों उसके का कारण कई आना लोगों की जाना जान रुक भी जाता जाती है है. वहां पे, और काफी लोगों की जान भी तो चली जाती है इसके उसके अंदर. हमारी इकोनॉमी को जो है उससे बूस्ट नहीं मिल पाता है. और मैं कहूँ टूरिज्म में भी, क्योंकि टूरिज्म की बहुत ज्यादा हीट वेव प्रोड्यूस होने के रीजन से लोग घर से बाहर नहीं Yes, निकलते हैं. I agree with you, और इस बार Rohit. One I thing agree we have with to you इस highlight बार that as this unexpected landslide events and unexpected जो बादल का फटना का event रहता है, it also causes a fear in the tourist mind, and then next time the level of tourism after before this natural disaster and after the natural disaster, there's a high difference in there's a natural disaster, and also affect the tourism economy of that particular, we can say, hilly sites also. Also, yes, if I we talk agree, about friend. tourism in Robert, coastal areas, like many people go to coastal areas, so uh, ऐसा हो सकता है कि कुछ सालों के बाद वो कोस्टल एरिया सबमर्ज हो जाएंगे, तो काफी ज्यादा लैंड लॉस होगा हमारे और पास. Yes, सबसे friends. और और सबसे ये ज्यादा इकोनॉमी में इफेक्ट करता है फ्रेंड. अगर कहीं पे फ्लड आ गया तो वहां पर कोई पर्टिकुलर चीज इतनी इम्प्रूव हो जाती है, उनकी रेट इतनी बढ़ जाती है, लाइक टमाटो हुआ या कुछ ऑनियन, सब्जी वेजिटेबल पे इफेक्ट पड़ता है. एक और इसका एक जो ये इम्पैक्ट है वो हम पहले से मतलब ऐसा प्रिडिक्ट भी नहीं कर पाते, क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज के कारण जो इम्पैक्ट आते हैं वो सडन आते हैं, तो हम पहले गेस नहीं कर पाते कि आगे क्या होने वाला है. जैसे हमने दुबई के अंदर देखा, वहां पे काफी सालों से सूखा पड़ रहा था, पर अभी एकदम से वहां पे इतनी रेन हुई कि वहां पे काफी ज्यादा लॉसेस हुए. तो हम उसको पहले प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते कि भाई इसके क्लाइमेट चेंज के कारण आगे क्या इम्पैक्ट होने वाले हैं, किसी के क्या इम्पैक्ट होने वाले हैं, उतना हम अभी अभी हम गेस नहीं कर पा सकते. यस फ्रेंड्स, क्लाइमेट सबसे चेंज की ज्यादा वजह से जब इम्पैक्ट बाढ़ मेट्रो वगैरह आती है सिटीज तो में हमारे होता पुल है. वगैरह डिस्ट्रॉय होते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो शॉर्ट रास्ता होता है वो लॉन्ग हो जाता है. तो कहीं ना कहीं इंपोर्ट एक्सपोर्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से टैक्सेस में इंक्रीमेंट होता है, और ये कहीं ना फ्रेंड कहीं वो हमारे पर बुरा इफेक्ट पड़ता है. जो चीजें हमें सस्ती अवेलेबल होनी थी वो हमें महंगी पड़ जाती है, क्योंकि लॉन्ग रूट से आता है बहुत सारे टैक्सेस लगा के, तो भी एक इकोनॉमी पे बुरा इम्पैक्ट डालता है.
I also Yes, highlight सबसे that ज्यादा और I impact also metro want to cities the पे add state one of होता more है। Odisha, point कि we can बहुत see सारे the in रीजन the में recent फ्लड year आने very की वजह से जो है हमारी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन भी जो है टूट जाता है, उसमें भी हमें फिर से डेवलप करने के लिए जो है बहुत सारे फंड रेज करने पड़ते हैं, तो उससे भी हमारी इकोनॉमी इम्पैक्ट हाँ, होती है। ऐसा इस टाइम Yes, जैसे होता है कि जिस फ्रेंड टाइम पे हमने उस पूरा बिल्डिंग को फ्लड बनाया था, आने से हमने ये सबसे एक पूरा ज्यादा विलेज इम्पैक्ट ही मेट्रो डिस्ट्रॉय हो सिटीज जाता में है, आता वहां है, पर लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां दिल्ली पर मुंबई हो गया। इकोनॉमी का बहुत इशू आता है। I ये also highlight a particular Cities point as like we Delhi, see Mumbai. in the state of Odisha, as it is a coastal region, there is a high amount of hurricane is occurring year by year. For example, in 1999, the Mahavatya is came into picture, taking the lives of the thousands and thousands of the people, innocent people, and in also 2012, the Phylline also came, which also causes the loss of precious human life. And also we have in economic terms we can see due to this hurricanes, the power supply, the electric poles are being uprooted, and so the power supply is interrupted in a devastating manner, and yeah, months and months are required for this to restore that particular power supply. So the as the power supply is interrupted, the industries are working on the power, they won't get the reliable power, and they won't contribute to the economy in a large extent. Yes, Yes, Ayush, I I also agree with want to Ayush. add We one more have point, states like that is Gujarat, Indra Odisha, Point. West Indra Bengal, Point, which which have is faced a located lot in of problems Kanyakumari. due to So Indra cyclones and Point has hurricanes. submerged now. Indra Point has been submerged now, which is located in Kanyakumari due to the reason behind that is uplift, that is tsunami, which comes I think 2002. So due to that, Indra Point has been submerged. That impact on our economy also. I think Indra I, Point I is on agree with you, Andaman Rohit. Nicobar Yeah. Islands, no? How submerged of Yes, it Indra is Point. southernmost point of. It was Okay, Okay, guys. located in southernmost point. Yes. Okay, now Indra Point. listen very carefully, Yes, everyone. submerged. Indra Point has been Okay. submerged now. Okay. Who wanted to go for conclusion? Hemraj, right? हाँ, yes ma'am. For the conclusion first. Then I'll give you the feedbacks because I don't know why you're not maintaining the sequence. रोहित कल एक advice दी थी, याद है क्या advice थी? Unmute your mic and tell me what was advice given to you? मैम मिक्स लैंग्वेज यूज करने के हाँ, लिए। और मिक्स किया इंग्लिश पैथेटिक जा रही है इस टाइम पे। कल आई थिंक इट वाज 20, आई थिंक इट्स 2022, इट कम्स इन दिस। लाइंस ही गलत हो जाएंगी, मीनिंग गलत हो जाएगा। आपके भले के लिए बोल रही हूँ, ब्लेंड यूज करने की कोशिश करो। हर एक की अपनी वीकनेस है। आयुष इज गुड इन इंग्लिश, उसको मैं नहीं बोल रही हूँ, उसकी फ्लुएंसी मेंटेन्ड है। उसकी फ्लुएंसी में गलती ये है, वो इतना लंबा सेंटेंस लेके जा रहा है। सुनील और रोहित ओवर पार्टिसिपेशन, बार बार पार्टिसिपेशन करना इज नॉट अ थिंग ऑल्सो। हेमराज की इनफॉर्मल वे है, कोई स्टोरी थोड़ी चल रही है। इनफॉर्मल क्यों हो रहे हो जब सेंटेंस नया स्टार्ट कर रहे हो, बताओ। ऑल दीज थिंग्स आर रॉन्ग। देयर आर स्टूडेंट्स, कई बार हम ले लैंग्वेज में यूज करते हैं, अरे ये वी यूज सर्टेन सच सेंटेंसेस, गलत होते हैं ये, मार्क्स डिडक्ट होंगे आपके, वहां पे कोई फायदा है आपके? आई एम नोटिंग ईच वन सेंटेंस, किसकी पार्टिसिपेशन अच्छी है, कंटेंट अच्छा है, दैट इज ओके, बट अपना ब्लेंड क्यों नहीं किया आज, बताओ। कल का फीडबैक था ना ये, तो फीडबैक को इनकॉर्पोरेट भी करके चेंज भी लाना होता है। सेम करोगे तो क्या ही फायदा होगा फीडबैक लेने का, बताओ मुझे। एचआर में भी प्रैक्टिस करो ये चीज को भी, और जीडी में भी प्रैक्टिस करो ये चीज, कि मैं देखूं आप चीजों, आपके पास टाइम है। द बेस्ट थिंग इज यू ट्राई करो कि मैं अपनी इंट्रो में अच्छा हूं। एवरीवन शुड बी सेइंग इट आउट कि मैम मुझे इंट्रो करनी है। 4 लोग आज इंट्रो करो, कल 4 लोग कंक्लूजन करो। देखो कि फिट इन होते हो, नहीं होते तो वहां पे चांस मत लेना इंट्रो और कंक्लूजन का, मिड में लेना। किसी की लाइंस ही नहीं, आई वांट टू कोट एन एग्जांपल, आई वांट टू साइट एन एग्जांपल, आई वांट टू रिलेट विद यू, आई डिसएग्री विद यू। इनफॉर्मली एवरीवन इज स्टार्टिंग इट आउट। जीडी में सारे बाहर हो जाओगे तुम लोग जिस तरह से कर रहे हो। चलो गो अहेड विद द कंक्लूजन, हेमराज फर्स्ट। Thank you, ma'am, for giving me the opportunity to conclude this group discussion. हमारा जो मेन पॉइंट निकला इसके अंदर की जो क्लाइमेट चेंज है, इसका जो मेन रीजन है वो अर्थ के एवरेज टेम्परेचर के अंदर इंक्रीज हो रहा है, वो है इसका मेन रीजन। और इसके कारण हमको वरियस थिंग फेस करनी पड़ रही है, जैसे कि हमें फ्लड फेस करनी पड़ रही है, जिसके कारण काफी पुल वगैरह, फसल वगैरह हमारी डिस्ट्रॉय हो जा रही है। इसके अलावा हमको काफी जगह अर्थक्वेक भी फेस करने पड़ रहे हैं। जैसे कि अगर मैं राजस्थान का एग्जांपल दूं, तो पहले के टाइम पे यहाँ पे अर्थक्वेक नहीं आते थे, पर अभी के टाइम पे हम काफी फ्रिक्वेंटली अर्थक्वेक फील कर पा रहे हैं। यहाँ पे काफी ज्यादा अर्थक्वेक आ रहे हैं।
इसके अलावा हमने इसका इकोनॉमी पे इम्पैक्ट देखा, क्योंकि फसल वगैरह खराब हो जा रही है, जैसे पुल वगैरह डिस्ट्रॉय हो जा रहे हैं। इसके अलावा जैसे कहीं पे सूखा आ जा रहा है, कहीं पे ज्यादा फ्लड आ जा रही है, तो इन सब के कारण हमारी इकोनॉमी कहीं ना कहीं इससे इम्पैक्ट हो रही है। That's all. यस मैम। Okay. See, there is mistakes. एक दूसरे की मिस्टेक से लर्न करा करो. I'm telling you very clearly, guys. हेमराज का जैसे कंक्लूजन था, he did not say at the last thank you. Sequence missing है कंक्लूजन में. सेम में इंट्रोडक्शन थी, इंट्रोडक्शन दी गई थी कुलदीप के द्वारा, राइट? कुलदीप ने इंट्रो में आपको जब टॉपिक दिया जाता है इम्पैक्ट्स ऑन इंडियन इकोनॉमी ड्यू टू सडन क्लाइमेट चेंज, यहाँ पे नए वर्ड्स क्या आते हैं? क्लाइमेट चेंज एक नया वर्ड है, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करो. दैट वी हैव सीन दैट क्लाइमेट चेंज हो किस रीजन से रहा है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से, ह्यूमन रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट कर रहे हैं हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज को. दीज आर द सम रीजंस. इसको जब इंट्रो पर्सन करेगा, उसको पर्सन बोलेगा ये दैट टुडेस टॉपिक इज इम्पैक्ट्स ऑन इंडियन इकोनॉमी ड्यू टू सडन क्लाइमेट चेंज. इट्स अ सीरियस कंसर्न. आपको कई टॉपिक्स मिलेंगे सीरियस कंसर्न वाले, कई टॉपिक मिलेंगे जिसमें आपको पता चल रहा है दैट इज अ जेनरिक डिस्कशन. आपको वो लाइनर यूज करोगे. व्हेन यू यूज सर्टेन एडजेक्टिव्स, आपकी इंट्रो क्या होनी शुरू हो जाएगी? बेटर होनी शुरू हो जाएगी. Okay, ma'am. That climate changes when the atmosphere, you can say, the weather is not able to maintain its limit, right? जितना उसको स्टैंडर्ड मेंटेन करना है नहीं हो पा रहा है मेंटेनेंस, और उसकी वजह से क्या हो रहा है? इन टेम्परेचर राइज की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट सडन चेंज हो रहा है. दैट इज क्लाइमेट चेंज. होता क्या क्या है? आपकी रेनफॉल जो है सही अमाउंट में नहीं आ रही है, और इट इज लाइक अनप्रिडिक्टेबल वन. अगर आपके कुछ नेचुरल और आ जाता है, फ्लड्स है, कई जगह पे वाटर स्कार्सिटी है, कई जगह पे वाटर की बहुत ज्यादा, यू कैन से इट इज गोइंग विदाउट द बियॉन्ड द लिमिट. ये सारी चीजें इंट्रोडक्टरी पर्सन को एक्सप्लेन करनी पड़ती है, राइट? दैट इज वाई जब आपको एक्स्ट्रा मार्क्स, मैंने स्टार्टिंग में बोला था, हेमराज एंड कुलदीप, यू हैव अ चांस टू विन एक्स्ट्रा मार्क्स, बट ऑन द कंडीशन कि आप लोग पॉइंट्स तो अच्छे दो कम से कम. ठीक है? व्हेन यू आर चैनलाइजिंग, इंट्रोडक्टरी पर्सन इज चैनलाइजिंग द डिस्कशन, सो इट इज लाइक here we can discuss number of perspectives. आपको ओपन एंडेड टॉपिक है, जैसे रीजंस क्या क्या है. आई थिंक ये पॉइंट किसने बोला था? लेट मी जस्ट कम अहेड. पहले कुलदीप का पॉइंट था इंट्रोडक्शन अच्छी नहीं थी, क्वालिटी वाज नॉट मच गुड, इवन द फ्लुएंसी अच्छी नहीं थी. कुलदीप या तो इंट्रो को नोट कर लिया करो अगर इंट्रो Okay, देनी है, ठीक है? ये ट्राई करना एक बार. उसके बाद इट वाज लाइक रोहित पॉइंट्स आप कैसे जाते हैं? ओवर पार्टिसिपेशन करके मत खराब करो. आप विजिबल हो. सी, द मेन पर्पस ऑफ योर्स इज टू बिकम विजिबल, टू एक्ट पार्टिसिपेटरी. ये नहीं है कि बार बार भी विजिबिलिटी नहीं होनी चाहिए. इट शोकेसेस आप बाकियों को बोलने नहीं दे रहे हो, वो आपकी गलती आती है फिर. और ब्लेंडिंग ट्राई कर, गलत जा रहे हैं. जैसे आई थिंक कम्स इन 2022, सारा गलत था, वो लाइन ही गलत थी. जो आप बोलना चाहते हो, दे वॉन्ट गिव यू यू कैन से सो मच स्पेस टू नो कि आप क्या सेंटेंसेस बोल रहे हो. उन्होंने सीधा क्रॉस करना है यहाँ पे, ठीक है? तो वो पॉइंट्स गलत हो जाएंगे. ब्लेंडिंग ट्राई करना शुरू करो. अगर नहीं होता है तो नो वरीज, उसके बाद मैं बताऊंगी दूसरा हैक क्या करो. बट मुझे भी तो करना पड़ेगा ना कि कहाँ गलती कर रहे हो और उसको ओवरकम कैसे करोगे आप. आपका अच्छी फ्लुएंसी है, फ्लुएंसी इन द टर्म्स ऑफ कंटेंट अच्छा देते हो, कंटेंट की वजह से आप जीत सकते हो, अदरवाइज यू विल बी आउट ऑफ इट. ठीक है? देन इट इज सुनील के पॉइंट. सुनील का भी पॉइंट एग्रीकल्चर अच्छा था. सुनील, रोहित किसकी बात कर रहा था? ट्रांसपोर्टेशन की. आपने कहाँ पे आगे शुरू कर दिया? एग्रीकल्चर. जब हम नया डायमेंशन देते हैं, दिस शोकेसेस आप अटेंटिव नहीं हो. पहली बात तो सबको होता है कि मैं अपना पॉइंट बोल दूं, ऊपर वाला क्या बोल रहा है उसको कोई पड़ी नहीं है. तो इससे अच्छा होता है जब आपको लगता है कि पता नहीं ऊपर वाले ने क्या बोला है, क्या पॉइंट दिया है, यू एड दिस लाइन दैट आई वांट टू एड अ न्यू डायमेंशन टू दिस टॉपिक एंड आई नाउ वांट टू ब्रिंग द नोटिस दैट एग्रीकल्चर इज बीइंग इम्पैक्टेड. फिर आपके साथ हेमराज ने एग्री किया, हाँ क्रॉप इफेक्ट होती है, वो सीक्वेंस सही शुरू हो गई. तो किसी के पॉइंटर्स को चेंज करना है, उसमें एग्री डिसएग्रीमेंट शोकेस करो. और you could say it out. Rohit, you gave a very well point, but I would like to add a new dimension that agriculture sector is being impacted. ठीक है? Then it is, I think एक चीज हेमराज ने बोला था, पहले हमें रीजंस को समझना चाहिए कि क्यों हो रहा है क्लाइमेट चेंज एंड ऑल दैट, राइट? तो वो पॉइंट अच्छा था, उस पर एक डिस्कशन हेडर्स बनाया करो. हेडर इज जैसे फर्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर. जब आप लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि आई थिंक टूरिज्म इम्पैक्ट हो रहा है, वो अलग पॉइंट था. आई थिंक शुभम का पॉइंट था टूरिज्म का. Yes, sir. शुभम का ही था आई थिंक, Yes, sir. right? Yeah. That was a Yes, very sir. good point. And Rohit के examples about Kedarnath, हेमराज का about Dubai, all these were linked. वो अच्छा चल रहे थे. उसके बाद जो रोहित ने दोबारा पॉइंट किया फंड रेस का. रोहित, यू अंडरस्टैंड, आप बहुत मल्टीपल पार्टिसिपेशन देते हो, वो ही चाहिए होता है. आयुष का पॉइंट रिलेटेड टू पावर सप्लाई. आयुष वो इंफ्रास्ट्रक्चर में ही आ जाता है बच्चे.
है ना, पावर सप्लाई की प्रॉब्लम हो रही है, और भी चीजें आ रही हैं। मैम Am I एक audible, guys? पॉइंट मैं बोलना चाहूंगा। यस मैम। Yeah, Shubham, go ahead. हेलो। यस मैम। मैम पहले सभी को एक एक मिनट दिया जाए बोलने के लिए इंडिविजुअली, फिर उसके बाद ओपन वो किया एक जाएगा मैम के लिए। ये लंबे सेंटेंस ज्यादा अबाउट यूज करते तो वो क्योंकि शुभ मैम जीडी एक्चुअल में में नहीं होगा लाइक जीडी में। हाँ हाँ, बोलो बोलो। मैम लाइक दो तीन लोग एक साथ ही बोलने लग जाते हैं, फिर लाइक नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं पॉइंट्स कभी करना कभी ये आपको। मिस नहीं होता है। ये अभी आप गलतियां कर रहे हो, किसी की ओवर पार्टिसिपेशन की वजह से बाहर जाते हैं, कई हाइपर एक्टिव होते हैं, ये मिस्टेक्स है जिसकी वजह से नहीं हो पाता है। दैट इज यस समथिंग यू मैम। हैव टू कॉम्प्लीमेंट, राइट। इससे एक एक मिनट नहीं, हमें एक्चुअल जीडी में देखना है। एक्चुअल जीडी में टेल यू, वहां पे फिश मार्केट कभी भी क्रिएट नहीं होती है। द रीजन इज बिकॉज यू नो आपका एक एक वर्ड वेटेज हो रहा है आपका, और उसमें आप डर डर के बोलते हो। यहाँ पे यू नो कि आपको कोई बात नहीं, गलत बोलोगे। आज भी सेम मैं फीडबैक दे रही हूँ, मैं वही तो बोल रही हूँ, आई गेव द फीडबैक, सेम फीडबैक 2-3 टाइम्स, आई हैव नोटेड डाउन। आप लोग चेंज क्यों नहीं करते हो? आई डोंट नो व्हाई, एंड इट इज गुड फॉर यू ओनली गाइस। ठीक है, पार्टिसिपेशन पे थोड़ा कंट्रोल करो, फिश मार्केट मत बनाया करो। आयुष हेडर्स यूज करो अपने पॉइंटर्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल दैट, उसको एक्सप्लेन करके करा करो that infrastructure sector is being impacted you, and I think that the power supply आ गया। उसके बाद अगर कोई that is there huge damages there of buildings and all, कोई इकट्ठा पॉइंट आना चाहिए था। ठीक है, एंड इट इज फॉर एवरीवन। हेडर्स वगैरह यूज करके पॉइंट दोगे, बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि समटाइम्स अ पर्सन इज जस्ट लिसनिंग द बेसिक क्रक्स ऑफ योर पॉइंट्स, नॉट एवरीथिंग। ठीक है, तारा एंड आई वुड से थोड़ी पार्टिसिपेशन में इंक्रीज करो। आई कुड नॉट हियर मच फ्रॉम यू। फर्स्ट जीडी था आपका, सेकंड था मैं पहले भी। तो पार्टिसिपेशन, मुझे कोई कंटेंट सुना ही नहीं आपका। मे बी आई डोंट नो, इट वाज यू ट्राई टू स्पीक और समथिंग, बट आई कुड नॉट हेयर एनीथिंग फ्रॉम योर साइड। तो पार्टिसिपेशन इंक्रीज करनी शुरू करो, कि करो पार्टिसिपेट। ठीक है, मैम जो सेंटेंसेस में बोल रहा हूँ वो ग्रामेटिकल वे से रॉन्ग है ना? हाँ ग्रामेटिकल इंग्लिश तो गलत बोल रहे हो, वही तो बोल रही हूँ मैं। ओके ओके। ठीक है, इंग्लिश लाइंस ही जब गलत बोलोगे तो हिंदी में आ जाओ, मिक्स में आ जाओ, पर कोशिश करो सही बोलने की। ठीक है, वो गलत है। हेमराज, इनफॉर्मल मत हो, इनफॉर्मेलिटी आपकी बहुत ज्यादा डिपिक्ट होती है। इनफॉर्मल नहीं होना, इट्स अ वेरी फॉर्मल जैसे इंटरव्यू। मैम थोड़ा मेरे को ठीक है, जैसे मैम मेरे को थोड़ा इसके बारे में बताइए ना। जैसे आपने स्टार्ट किया आपका पॉइंट, आई टेल यू, जब सारे डिस्कस कर रहे थे अबाउट द एग्जांपल्स, केदारनाथ, दुबई एंड ऑल दैट। हाँ, उसके बाद यू स्टार्टेड, हाँ ऐसा है कि इसमें ये था, मतलब दैट इज अ लाइनर यू बिगिन विद, दैट्स अ वेरी रॉन्ग वे ऑफ स्पीकिंग। ठीक है, बाय चांस कईयों की हमारी हैबिट होती है कुछ वर्ड्स बोलने की, वी आर नॉट इवन अवेयर कि हम ये वर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, बट when other person listens it out, the person gets to know that you have a habit of speaking such words or such liners. So make it a point that you start that, okay everyone, you gave a very wonderful point, pay respect to others, I want to cite an example, I want to quote an incident, ऐसे कुछ pointers बोलो। अपने लाइनर्स को इम्प्रूव करो, कि आप बहुत एक तरह का शोकेस करो, यूर वेरी रेस्पेक्टेबल पर्सन हु इज शोइंग कर्टेसी फॉर अदर्स आल्सो टू गिव देयर पॉइंटर्स। अगर कोई बोल रहा है पॉइंट, तो यू कुड से, या कुलदीप प्लीज गो अहेड, आई वुड लाइक टू लिसन योर पॉइंट। प्रमोट पार्टिसिपेशन ऑल्सो, दैट्स अ ग्रुप डिस्कशन। एक ग्रुप में आप कितना ब्रेनस्टॉर्म करते हो, कितना एक दूसरे की तरफ क्वालिटी मेंटेन करते हो, कितने पॉइंटर्स देते हो, हर चीज, और आपकी फ्लुएंसी। ज्यादा पार्टिसिपेट करके मैम जीतोगे नहीं, रिमेंबर इट आउट। हाँ रोहित। मैम जैसे हम इंप्रूव देते हैं या कंक्लूजन करते हैं, जो मेन ग्रुप डिस्कशन करेंगे उसमें पैनल मेंबर को देखना होता है या फिर केवल अपने ग्रुप मेंबर पे ही आई कांटेक्ट बना? नहीं नहीं, इट इज अ म्यूचुअल वन, कि हमने क्या क्या ग्रुप में डिस्कस किया है, और न्यूट्रल एंडिंग तो देनी मैं होती है। जैसे इसका न्यूट्रल एंडिंग, कोई ऐसा आपको मैं काउंटर टॉपिक देती हूँ जिसमें इम्पैक्ट्स ऑन इंडियन इकोनॉमी, एजुकेशन सेक्टर का आ गया, कोई इंप्रूवमेंट का स्कोप है, तो हमेशा पॉजिटिव एंडिंग दोगे आप। दैट इज कि ओके, एट लास्ट आई वुड लाइक टू end it on a positive note that yes, government is doing great initiatives, and we even have, being the natural resources or human resources, have to contribute our best so that we do not spoil the environment more, and it goes in the right direction, क्योंकि हमारे म्यूचुअल एफर्ट से ये इंप्रूवमेंट हो सकती है चीजों की। बस एक पॉजिटिव यस एंडिंग दो। मैम ये यस मैम, बस मैं ये कहना चाहूँ कि जब हम कंक्लूजन करते हैं तो जो पैनल मेंबर होते हैं उनको आई कांटेक्ट में रखे, जैसे हम कि अपने साथी मतलब अपने ग्रुप पे आई कांटेक्ट बना के हाँ सारी हाँ मतलब हाँ, जो भी बोलना अपने है लिए। बोलें, कंक्लूजन देखो वगैरह। बहुत सारी चीजें ना जो बिल्कुल लास्ट हैक्स है,
वो बाय द एंड है, जब मैं आपको कुछ क्रक्स बताने लग जाऊंगी कि जिनको इंट्रो करनी है, जिनकी बेस्ट है इंट्रोस, आई विल टेल यू आउट कि कौन अच्छा करता है, कौन कंक्लूजन अच्छा करता है, फिर आपकी लाइनर्स ऐड हो जाती है। कंक्लूजन वाला यही बोलेगा, as every coin has got two sides, we know that there are positive impacts, negative impacts, we need to see the positive sides, the brighter sides, and we need to improve the negative sides। एक पॉइंट याद करना है। इंट्रो में भी कुछ लाइनर्स मैं आपको याद कराऊंगी, बट वो आता है बाद में, स्पून फीडिंग। पहले अपना सब्जेक्टिव चलो, कुछ टाइम करो, जब आपका पूरी पार्टिसिपेशन पूरे प्रिपेयर्ड हो, देन या ऐड दोज लाइनर्स। वो एट द लास्ट चेरी ऑन द केक है, वो रिक्वायर्ड नहीं है। वो ये है कि आपको और अच्छा दिखने के लिए, बट अभी तो बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे हो, अभी थोड़ी ऐड करोगे, अभी मेरे को फायदा भी नहीं है आपको स्पून फीड करने का, अभी ब्रेनस्टॉर्म करो। मैम मेरे पॉइंटर्स थोड़ा लंबे जा रहे थे क्या? ये आपके पॉइंट जब ये होते हैं ना, देखो, यू हैव टू मेक अ पर्सन इंटरेक्टिव, आपके नरेटरी स्किल्स भी काउंटेबल होते हैं। The way I'm speaking, the way I'm taking pauses, I'm taking a speed fast, I'm taking a speed slow, हर चीज मैटर करती है। आपने एक ही पॉइंट बोला, लंबा पॉइंट बोल दिया ना, उसमें हेडर देना कुछ थे, अदर पर्सन हैव टू बी वेरी कॉशियस व्हाइल लिसनिंग टू यू। कोई पर्सन कई बार नहीं भी होता, आपका पॉइंट माइनस में चला जाएगा। ठीक है, पॉइंट अच्छा था, अनडाउटेडली योर पॉइंट वाज गुड। मैं सिर्फ उसको ये बोल रही हूँ कि इसको इम्प्रूव करो पॉइंट को। कईयों के पॉइंट्स अच्छे, कईयों के पॉइंट ही नहीं अच्छे होते हैं, एटलीस्ट आपका कंटेंट तो सही है। और इतने लेट, मतलब आई डोंट नो, आई हैव नॉट सीन मच पार्टिसिपेशन ऑफ योर्स इन जीडी। लगाया है पहले जीडी से आयुष, कि ज्वाइन लेट किया? नहीं मैम लगाया है। लगाए हैं, ओके। Yes, ma'am. चलो, विल मीट टुमारो गाइस, ओके, टेक केयर, ऑल द वेरी Yes, बेस्ट। sir. Okay.